ایسا کہتے ہیں وزارت داخلہ کا ہائی کورٹ میں جواب انہوں نے جمع کروایا ہے، جبکہ وزارت آئی ٹی 2 نمبری کر رہی ہے، ہر کام چودھری نثار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انوشا رحمان، احسن اقبال اور وزیر مذہبی امور کہاں ہے، ایسا کہتی ہے عدالت۔ تو اس حوالے سے یہاں پر مین لیڈ لگی۔ جی، اور میرے پاس جنگ میں جو زرداری صاحب کی بھی ایک خبر ہے، کیونکہ اب ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے میدان سج گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مفاہمت ختم، اب اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا اور بلاول با اختیار ہے۔ آصف زرداری کا یہ کہنا ہے کہ عہدیداران اور کارکن جو ہے وہ تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ ساری میں نے جیسے آپ سے کہا کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ بالکل۔ اچھا، ایکسپریس میرے پاس ہے اور اس میں جو لیڈ ہے وہ ہے حیدرآباد کے لیے پیکیجز پر وزیر اعظم کا شکریہ۔ فاروق ستار کا ایسا بیان ہے، اور اعلانات سے حیدرآباد کے شہریوں کی مایوسی کم ہوئی ہے اور کراچی کے لیے بھی پیکیج دیا جائے۔ تو فاروق ستار کا ایسا کہنا ہے، کل جو انہوں نے دورہ کیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف پہ، اس پہ ان کی جو پیکیجز ہیں اس کے لیے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اچھا، میرے پاس اس وقت ڈان نیوز ہے اور اس میں جو ہے یہاں پر جو مین لیڈ ہے وہ ہے ان پول کیمپین موڈ پی ایم انویلز حیدرآباد اپلفٹ پلانز۔ تو وہی پرائم منسٹر کے حوالے سے یہاں پر بھی مین لیڈ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انوائس یو ایس ویزا پار withdrawn in 2014۔ تو اس حوالے سے یہاں پر مین لیڈز ہیں۔ آپ کے پاس بزنس ریکارڈر میں کیا خبر ہے؟ میں میرے پاس ہے کہ عیسیٰ پروجیکٹس بگ واٹر سٹوریج، اور یہ جو فصل ہونے والی ہے اس میں پانی کی شارٹیج کے حوالے سے خبر ہے کہ کافی آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے تو اس میں مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں ہم۔ ہاں چلیں جی، گرمی کا موسم آ رہا ہے۔ ویسے گرمی کے موسم سے آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ گرمی کے موسم سے مبارک ہو آپ کو، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ کل بھی میرے گھر پہ تو بھائی 2 گھنٹے لائٹ نہیں تھی اور اب اس طرح کا مسئلہ اسٹارٹ ہو گیا۔ خیر، اب مختلف شہروں کا حال جان لیتے ہیں، اور سب سے پہلے آج رخ کرتے ہیں سکھر کا۔ اور سکھر میں کیونکہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں تو جانیں گے کیا صورتحال ہے، امتحانات کے لیے کیا سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی آج بات ہی کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سہولیات دستیاب کی گئی ہیں۔ تو اسی والے سے سب سے پہلے ہمارے جو نمائندے ہیں سکھر میں موجود ہیں، جمیل مغل، ان سے جانتے ہیں۔ جی جمیل مغل، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، سکھر میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں، اور سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور نشور فروز میں تقریباً 1,10,000 طلباء طالبات جو اس امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ سکھر میں 43 جو ہے امتحانی سینٹر ہیں، جہاں پہ تقریباً 200 زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ نقل کے رجحان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہاں پہ دفعہ 140 لگا دی گئی ہے۔ جو بھی جتنے بھی امتحانی سینٹر ہیں وہاں پہ بالکل فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت چیئرمین بورڈ غلام مصطفیٰ شاہ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ نقل کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی میڈیا کے توسط سے میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں جمیل صاحب کہ ہم نے پچھلے سال بھی کیے تھے، اس سال ہم نے اسے زیادہ کیا ہے، اور جبکہ سی ایم صاحب نے ہمیں بڑا جو ہم نے دیا ہے کنسپٹ دیا ہے کہ انہوں کا جو ساتھ ہے، انہوں نے رات جو کھلا خط پیرنٹس کو بھی لکھا ہے اور ٹی وی میں چلا، آج صبح کو بھی چلا ہے، پیرنٹس کو بھی انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اپنے بچوں کو زہر مت دیں، نقل کرنے سے روکیں۔ ہم نے بچوں کو ڈسٹرکٹ میں جا کر وہاں جا کے میٹنگیں کی ہیں پیرنٹس سے، سول سوسائٹی سے، کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آئیں مل کر ہم کاپی کلچر کو ختم کریں۔ کافی علاقوں میں ہمیں یہ پازیٹیو نیچر میں جی آئیں مل کر سب جتنے بھی جب تک والدین ساتھ نہیں دیں گے کاپی کلچر ختم کرنے کے لیے، اس وقت تک کاپی کلچر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے سال بھی جو ہے کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، لیکن اس سال جو ہے انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے مل کر انتظامات کیے ہیں، بلکہ سی ایم سندھ نے بھی جو ہے سخت انسٹرکشن دی ہیں کہ کاپی کلچر کو روکنے کے لیے جو ہے تمام وسائل برے کر لائے ہیں، جس کے لیے اس وقت جو ہے پورے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اسکول کے جتنے بھی جو راستے ہیں وہاں پہ پولیس کھڑی ہے۔ اسی طرح پورے جو ریجن ہے سکھر ریجن جو ہے وہاں پہ انتظامات سخت کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جمیل صاحب، اور اب ہم رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں سے کفیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایگزامز کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ایگزامز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ جی کفیل صاحب بتائیے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں آج جو ہے وہ میٹرک جنرل گروپ کے ایگزامز کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 46,000 طلباء و طالبات جو ہیں وہ شریک ہوں گے، اور جن کے لیے ہے وہ 83 امتحانی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، جس میں 50 لڑکوں کے ہیں اور 33 جو ہیں وہ لڑکیوں کے قائم کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ 38 جو ہیں وہ ٹیچرز پر مشتمل جو ہے وہ 19 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ مختلف سینٹرز پہ نہ صرف جو ہے وہ چھاپے مار سکیں گی، بلکہ جو ہے وہ جا کے وزٹ کر سکیں گے کہ باقاعدہ جو لوگ جو طلباء و طالبات نقل کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر اسکول ہیں، ڈی ڈی اوز ہیں، ان کو یہ اختیارات دی گئے ہیں کہ وہ تمام سینٹرز پہ جا کے وہ دیکھ سکیں کہ آیا جو ہے اپنا کسی بھی قسم کوئی مواد نقل کے حوالے سے جو ہے وہ موجود نہ
मैं आपको बताऊं कि अपने स्पेसिफिकली सीएम सिंध से जो है वो वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि नकल की रोकथाम के लिए उन्होंने वालिदैन के नाम एक ख़त भी जो है वो लिखा था, जिसमें कहा था कि जो है वो नकल के हवाले से जो है वो बच्चों को जो है वो तरबियत की जाए और उनको रोका जाए। और इसी हवाले से तमाम सेंटर्स जो बनाए गए हैं जनरल ग्रुप के लिए, उसमें जो है वहाँ जैमर्स लगाने के लिए हिदायत दी गई हैं। इसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है और इसके अलावा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अलाउ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि सेंटर्स के तकरीबन 1 किलोमीटर के अहाते में जो है वो तमाम जो है वो दफ़ा 144 आयद की गई है और उसके तहत जो अगर करीब में कोई फूड स्टेट शॉप है उस पर भी जो है वो पाबंदी आयद होगी। मजमूई तौर पर जो है वो ये पहला मरहला है जो कि मरदमशुमारी के बाइस जो है वो जो 14 अप्रैल को कम्प्लीट होगा। उसके बाद दूसरे मरहले में जो है वो साइंस ग्रुप के इम्तहानात होंगे जिसमें तकरीबन 3.5 लाख तलबा और तालबात शरीक होंगे और उसके बाद जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होगा। जी ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे आप रिया, और इस दफा तो काफी सख्ती की गई है। उम्मीद है कि चीटिंग जो है वो कम से कम होगी। अच्छा, वैसे जो चीटिंग करते हैं, चले इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं इस्लामाबाद और अली फुरकान का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद है वफाकी दारुल हुकूमत का और जानेंगे कि नुमाइंदा आज न्यूज अली फुरकान आज इस्लामाबाद से हमें कौन कौन सी अहम खबरों से आगाह कर रहे हैं। जी अली फुरकान, अपडेट कीजिए। जी, इस्लामाबाद में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे यहाँ का मौसम खुशगवार हो गया है, कुछ ठंडक हो गई है। गुज़श्ता कुछ 2 रोज़ से यहाँ पे गर्मी की कुछ शिद्दत महसूस की जा रही थी। अगर बात करें सियासी हवालों से तो आज सेनेट का इजलास है शाम में और उसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो आईनी तरमीम है वो दोबारा बिल पेश किया जाएगा। गुज़श्ता इजलास में जो कि 22 मार्च को हुआ था, ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकी थी। अददी अक्सरियत जो है वो ना होने की वजह से मतलूबा तादाद अरकान की मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मौखर हुआ था और आज दोबारा इस आईनी तरमीम को पेश किया जाएगा सेनेट के इजलास में आज शाम में। और इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के साथ अपनी जो तादाद है अरकान की 2/3 वो मुकम्मल कर पाएगी आज के सेशन में और इसको मंजूर कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस्लामाबाद में है, आज वो ज़ैबिस्ट के तलबा से खिताब करेंगे, कन्वोकेशन है उनका, उनको असनाद हवाले करेंगे। ये इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो का पहला बाकायदा नौजवानों और तलबा के साथ इंटरेक्शन होगा। इसके साथ आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को तलब कर रखा है। नैब में गैर कानूनी तकर्रियों के हवाले से केस था जिसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो पेश हों इस हवाले से बराह रास्त। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। और बात हो रही थी चीटिंग के हवाले से और हम कह रहे थे कि एग्जाम्स क्योंकि शुरू होने जा रहे हैं और चीटिंग के लिए रोकथाम की जा रही है। आप कुछ कह रही थी अस्मा? मैं ये कह रही थी कि मैंने तो अपने कभी भी एग्जाम्स के दौर में चीटिंग नहीं की। पता नहीं किस तरह से लोग चीट कर लेते हैं ना पेपर में। अच्छा, पता है क्या, हमसे तो ये भी हिम्मत नहीं होती कि अगर कोई आपके आगे वाला बैठा है ना तो उससे पूछने में भी जान निकलती कि सुनो तुम्हें नेक्स्ट वाले ए का बी का आंसर आता है कि नहीं आता। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ये। और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि रात गए लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस शेखुपुरा में ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद इंजन और 5 बोगियां जलकर तबाह हो गईं। सो सैड। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक अंधेरे और नाकाफी सहूलियात के बायस आग पर काबू पाने में 2.5 घंटे लगे। और इसको क्या कहा जाए, इंतजामिया की गफलत या फिर कुछ और? कितनी दफा इस तरह के हादसे जो है हमारे ही मुल्क में हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी रोकथाम की जा सकती है अगर बेहतर इक़दाम किए जाएं। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात का पहला मरहला आज से शुरू हो रहा है। इम्तहानी मार्के में लगभग 7 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इनमें से 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार कराची से होंगे। 8 अप्रैल तक जारी रहने वाले पहले मरहले में कराची से तकरीबन 46,000 तलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाई। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है जबकि आसपास के इलाकों में दफा 144 नाफिज। हाँ, आसपास के इलाकों में दफा 144 नाफिज हो गई है तो होशियार, बिल्कुल चीटिंग नहीं करने का, अपनी मेहनत से पास होने का। खैर, अब कुछ बात कर लेते हैं गर्मी की। और मुल्क भर में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लाड़काना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया जबकि कराची में भी गर्मी ने अपना जोर पकड़ लिया है जबकि पेशावर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मालाकन डिवीजन और फाटा हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। कितने लकी हैं जी मालाकन डिवीजन के लोग और फाटा के लोग जहाँ पर हल्की हल्की बारिश का इम्कान है। और अब वापस में मुझे बारिश याद आ रही है कि दोबारा से बारिश हो रही है क्योंकि गर्मियां आने ही नहीं, गर्मी आ गई है। खैर, गर्मी की बात हो रही है और आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का जिसके बाद बताएंगे।
अखबारात में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, क्या एडिटोरियल्स आए हैं, सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप आए, और आपकी मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको देखा तो मैंने इसलिए कहा कि जी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप आप? लोगों का अल्लाह का शुक्र है। हाँ आज मैं अपने इस इदारियों के इस एनालिसिस का आगाज़ एक शेर से करता हूँ। हाँ हाँ है अमानत में ख़यानत जो किसी की खातिर, हाँ। कोई मरता है तो हैरत नहीं होती मुझको। ओह ये मेरा शेर नहीं है, दरअसल ये मज़हर बरलास साहब ने अपना एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल जंग में लिखा है। राइट, बर्बादियाँ कैसे हुई, सी कुछ इदारों के बारे में बात की है, कुछ अच्छे इदारे हैं और क्यों कहा है हम क्यों मजमूई तनाजुली का शिकार हैं। काश वो हमारे साथ होते तो मैं हमसे सवाल यही करता कि हम मजमूई तनाजुलियों का शिकार आखिर क्यों हैं, हमें क्या मशवरा देते हैं। मजहर बरलास साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर ओहो, मौजूद my हैं, God। तो आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। अच्छा, और उनसे ये आप तो पूछ बहुत सकते हैं अच्छी जो बात है। पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम मजहर बरलास साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप फरमाइए। जी अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ इस वक्त नफीस नईम साहब बैठे हुए हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे आपके एडिटोरियल के बारे में। थैंक यू सर। तारीफ कर रहे हैं मजहर साहब हम तीनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मदर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत प्यारा आर्टिकल है, ये बर्बादियाँ कैसे हुई, ये मैं पढ़ रहा था। ये आपने तो पहले इदारों की बड़ी तारीफ की, मैंने कहा आज मदर साहब बहुत तारीफ पर आए हैं मुल्क और कौम की। उसके बाद आपने अचानक जो है वो दूसरा आईना दिखाया रुख। तो मेरा सवाल यही है कि जो आपने आर्टिकल में लिखा है कि मजमूई तनाजुली का शिकार हैं, और बहैसियत पाकिस्तानी आपने कहा है कि मुझे मजबूर हुआ हूँ कि मैं ये लिखने के लिए। तो सर आप मुझे बताइए कि आप क्या मशवरा देते हैं, इस देश को हम कैसे बचा सकते हैं इस मजमूई तनाजुली से? आप देखिए कि आज भी रेल का एक हादसा हुआ है, और इस दौर में बहुत से हादसा हुए रेल के, मगर मजाल है कि वज़ीर रेलवे इस्तीफा दे या किसी को कोई सजा हो। इस मुल्क में एक रिवाज बन गया है कि बर्बादियों को कोई जिम्मा देने के लिए तैयार नहीं। दुनिया के कई मुल्कों में मैंने देखा है कि मामूली हादसा होता है तो लोग रिजाइन कर देते हैं, किसी पे करप्शन का इल्जाम हो तो रिजाइन कर दिया जाता है। और इस मुल्क में कोई पता नहीं अजीब रिवाज है कि यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इदारे बर्बाद हो रहे हैं। और तो ये आप कराची में है इस वक्त, आप कराची स्टील मिल की देख लीजिए, ये सरकारी है, कौमी है, और इस स्टील मिल के वर्करों के लिए तनख्वाह के लिए भी पैसे नहीं है। और जो इन लोगों की अपनी स्टील मिलें हैं वो माशाल्लाह तरक्कियाँ कर रही हैं, रिच पा रही हैं और सरमाया बना रही हैं। तो जो कौमी एयरलाइन है उसका भी ये हाल है। कौमी इदारे जो हैं वो तनजुली की तरफ है, और जो इनके जाती इदारे हैं हमारे अशराफिया के या हुक्मरानों के मुतहद। तो बेहतरी कैसे आ सकती है इसमें मजहर बरलास साहब, इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा आखिर? बेहतरी यही है कि जो अहल लोग हैं उनको आगे लाया जाए। बातचीत भी हमारे यहाँ ये हुई है कि पहले हमारी मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे होते थे वो अदारों की सरबराहियाँ उनके पास होती थी, वो कुछ देखभाल बेहतर करते थे। अब तो नालायकों का इंतखाब किया जाता है, चुन कर अदारों के सरबराह ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो इनको कमीशन देंगे, जो इनके साथ मिल जाए। तो जो साथ मिलने वाले होते हैं वो लायक लोग तो नहीं साथ मिलते, या ईमानदार लोग तो साथ नहीं मिलते, हमेशा नालायक लोग साथ मिलते। तो जब नलायकों का टोला आपके साथ मिला हो तो फिर नलायक जो है वो नाव डुबो देते हैं, उनसे बेहतरी की तो नहीं हो सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर बरलास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अपने एडिटोरियल के बारे में जो कि उन्होंने लिखा है। गो के मुझे उनकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, आज मेरी आइब भी जो है वो पता नहीं क्यों इशू कर रही है। खैर नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और आप बात कर रहे थे कुछ अखबारात के एडिटोरियल पे, और शुरू आपने मजहर बरलास साहब के एडिटोरियल से किया था। जी अब ये आते हैं कि डॉन में है और ये दूसरे अखबारों में भी है, एक बहुत बड़ा इशू है। राहिल शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को टेक ओवर करने जा रहे हैं, कमांडर बनने जा रहे हैं उसका। राहिल शरीफ से रेटिसेंस, ये डॉन ने एडिटोरियल लिखा है
اس کے حوالے سے سلیم صافی صاحب نے بھی لکھا ہے آرٹیکل, اور یہ سب سے پہلا سوال یہی کیا گیا ہے کہ خاموشی کیوں ہے, اس کو پرسرائیت کا روپ کیوں دیا گیا ہے, سیکرٹ کیوں رکھا گیا ہے. اور یہ سوال اٹھایا گیا اداریوں میں کہ سعودی الائنس کا مقصد کیا ہے. کیا یہ رنگ و نسل سے الگ ہو کے, بغیر اس کے آری ہو کے کام کرنا ہے ملیٹنسی کے خلاف, یا سعودی بلاک کو مضبوط کرنا ہے؟ یہ دو سوال بہت اہم اٹھائے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جانا ضروری ہے. جو آپ نے 2 سال پہلے یمن کے معاملے میں کیا تھا, اس کو آپ نے ایک فرد واحد کا کیس نہیں ہے, یہ آپ نے ملک انوالو ہو رہے ہیں. کیونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ راہل, ایک تاثر دیا گیا تھا, سلیم صافی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ پر یہ بلاک بنا ہے, اور امریکہ چاہے تو آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان کو وہ برطانیہ کے ذریعے خاموش کروا سکتا ہے, زرداری صاحب کو وہ سعودی عرب کے ذریعے خاموش کروا سکتا ہے, اور دوسری جو فورسز ہیں, جماعت اسلامی کا بھی ذکر کیا ہے, تو وہ بھی وہاں ان کے اگر فنڈ روک دی جائیں تو یہ مدر سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی میں نہیں کہہ رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے, لیکن جو اصل سوال اٹھا رہے ہیں ادارے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کیوں, اسے سیکرٹ کیوں بنایا جا رہا ہے. اگر یہ ملک اور قوم کے فلاح کے لیے یا سعودی بلاک کو آپ نے جوائن کرنا جانا ہے تو اعلان جائیں, آپ بتائیں کہ شاید وہ مئی کے آخر میں جوائن بھی کرے, چارج سنبھال رہے ہیں, تو کیا اس میں کتنی صداقت؟ بالکل, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے, یہ اداریوں نے بھی یہ کہا ہے, اور سلیم صافی نے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. اب یہ باتیں آئی ہیں کہ ان کے ہی ایک پروگرام کے اندر جو ہے وزیر جو ہمارے دفاع نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم نے ساری معاملات طے کر لیے, لیکن سلیم صافی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے معاملات طے ہو چکے تھے, بلاک کا حصہ ہم بن چکے ہیں, راحل شریف کی ساری ڈاکومنٹیشن تک ہو چکی ہے, خط و کتابت ہو چکی ہے, اگر میں غلط ہوں تو میں معافی مانگ لوں گا, اگر گورنمنٹ میرے کلیم کو غلط ثابت کرتی ہے تو وہ اعلان کرے کہ ہم بحیثیت ایک گورنمنٹ ہم اس کا حصہ نہیں ہے, ہمارا آپشن نہیں ہے. یہ جنرل راحل شریف نے انڈیویجولی حیثیت سے انہوں نے اپلائی کیا تھا اور یہ ہوا ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ انوالو ہے اور گورنمنٹ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اسی مسئلے پہ اگر سعودی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہاں تو ہم دیکھ رہے تھے نفیس نعیم صاحب, ٹویٹر ہو یا ان کا سوشل میڈیا ہو, وہاں پہ تو جو ہمارے جنرل راحل شریف ہیں ان کی تصاویر, ان کے بارے میں تمام بیسٹ وشز پراپر ٹویٹ ہو رہی تھی. لیکن معلوم نہیں, کیونکہ وہی جو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹوریل نے کہا کہ اتنا سیکرٹ کیوں رکھا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے تو آگے چل کے جیسے خبریں سامنے آئیں گی تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. خیر, ایڈیٹوریل کے ہمارے ساتھ موجود تھے نفیس نعیم صاحب جو کہ آج ایڈیٹوریل پہ بات کر رہے تھے. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ٹاپ پر سٹوری کی, جو کہ ہے امریکی سینٹ کے حوالے سے. صدارتی انتخابات کے دوران ٹرمپ کے روس کے تعلقات کی ساتھ تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کر دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس شون اسپائسر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کے سامنے ٹرمپ کے داماد پیش ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن کے دوران روس سے تعلقات کے حوالے سے سینٹ کمیٹی کو بتائیں گے. شون اسپائسر نے بتایا کہ جیرڈ کشنر ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر ہیں اور انہوں نے سینٹ کمیٹی سے رضاکارانہ طور پر بات کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو انٹرویو کے وقت کا تعین صدر ٹرمپ کے داماد کریں گے. ارکان سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ممکنہ رابطوں پر پوچھ گچھ ہوگی. اور اب نظر ڈالتے ہیں مزید کچھ عالمی خبروں پر, جس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یمن کے شمال میں خودکش بمبار کی, جس نے سرکاری کمپاؤنڈ پر حملہ کر کے 11 افراد کو موت کی نیند سلا دیا. القاعدہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ذرائع کے مطابق بمبار منی بس میں سوار تھے اور انہوں نے فائرنگ کے بعد اپنے آپ کو اڑا دیا. پولیس کے مطابق حملے میں 6 سیکیورٹی اہلکار اور 1 حملہ آور بھی مارا گیا. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد اب صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور ایک دفعہ پھر سے یمن جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک کی زد میں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یمن میں کتنے زیادہ حالات خراب ہوئے تھے اور کس طریقے سے پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا تھا. This is sad thing for یمن. میانمار کے فوجی سربراہ نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ریاستی آپریشن کا دفاع کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ رخائن میں بسنے والے بنگالی میانمار کے شہری نہیں بلکہ تارکین وطن ہے. اس آپریشن کے نتیجے میں 75,000 سے زائد مسلم اکثریت کو میانمار سے ہجرت کرنا پڑی تھی. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں سیکیورٹی فورسز کو مسلم اقلیتوں کے قتل عام اور اجتماعی ریپ کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا.
में साइक्लोन की जब बातें हो रही होती हैं या इस तरीके से कुछ कुदरती आफात की बातें हो रही होती हैं तो आपको शायद मैंग्रोव के वो जंगलात याद आ गए होंगे, जिसकी अहमियत से उन्होंने हमें आगाह किया था WWF वालों ने कि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो इस तरह के जंगलात जो होते हैं वो मददगार साबित होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा शऊर की ज़रूरत है, कौम में आगाही की कि ये पौधे और दरख्त हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे स्टूडेंट खुशबू से और मालूम करेंगे कितने साल से हॉस्टल में है वो। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज अपने प्यारों से दूर रहकर तालीम हासिल करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा मुलाजमत करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। जी हाँ, मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट को जानती हूँ जिनका नाम है खुशबू, जो लड़काना से तालीम हासिल करने के लिए कराची आई है। तो इनसे जानते हैं कि वो हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या कहती हैं। खुशबू गुल शेख, मैं MBA कर रही हूँ इन मार्केटिंग। तो यहाँ पे आई हैव बीन अ रेजिडेंट फॉर 1 ईयर। मैं पहले रहती थी अपने घर पे। देयर वाज माय मॉम, माय फादर, माय सिबलिंग्स, एवरीबडी टेकिंग केयर ऑफ मी, एवरीबडी डूइंग द चोर्स, एंड देन आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय स्टडीज एंड देयर वाज नथिंग एल्स टू वरी अबाउट। यहाँ पे आने के बाद आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू प्रिपेयर माय ब्रेकफास्ट, आई हैव टू I have to cook, I have to wash, I have to do whatever you name it, and the activity, I'll tell you, I've been doing it, and I'm completely prepared to run a home after living a year here. मेरे parents were more conscious, more confused, and more worried than I was. तो मैंने उनको ये feel नहीं होने दिया कि I am feeling a bit down. यहाँ पे जब आप एंटर होते हो तो यू हैव टू लीव द बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम। आपको जैसे आपके मम्मा आपसे पूछती थी ना कि आप बेटा कब जा रहे हो, कब आ रहे हो। अगर आप आ रहे हैं 5 मिनट भी लेट आएंगे ना तो दिस वॉचमैन आस्क्स यू व्हाई आर यू लेट। अगर आपका उसको रीज़न समझ आएगा 5 से 15 मिनट का कि ठीक है, हाँ सही बोल रही है बच्ची, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो गए तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स यू टू मैडम, और मैडम आपसे पूछेंगी बेटा आपने हमसे परमिशन तो नहीं ली थी। एज फार एज वीकेंड इज कंसर्न तो हमारा ये होता है, लोग समझते हैं वीकेंड पे हम एंजॉय करते हैं। हॉस्टल लाइफ में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आप सुबह सवेरे उठते हो उसी टाइम पे जब आपने ऑफिस जाना है, आप अपने कपड़े वॉश करेंगे, आपने जो पूरे वीक के लिए कुकिंग करनी है आप वो कर लेंगे। If you have to meet somebody, if you have to do some shopping, आप उधर चले जाएंगे, ग्रॉसरी ले आएंगे। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब एक बोलता है ना बंदा, एक बच्ची थी मैं, मामाज गर्ल, ठीक है, और पैम्पर्ड सी, आई डिडंट नो अबाउट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसके बाद आई डिसाइडेड माई सेल्फ कि मैंने जाना है, एक्सप्लोर करना है और बाउंड्रीज अपनी बढ़ानी है। तो हॉस्टल लाइफ टॉट मी मैनी थिंग्स। पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बच्चियाँ इतनी हिम्मत कर लेती हैं कि हमें हॉस्टल में जाना है, हिम्मत इन द सेंस कि वो सारे काम कर लेंगी और सब कुछ फेस कर लेंगी, तो प्लीज़ लेट देम गो। उनको अनप्रोटेक्टेड फील होने दें, उनको एक्सप्लोर करने दें, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में वो बहुत कुछ सीख सकती हैं जो घर पे रह के वो नहीं सीखेंगी, क्योंकि दे हैव द ऑप्शन वेदर टू लर्न इट और नॉट। हॉस्टल लाइफ में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, फर्स्ट। एंड सेकेंडली, ये डिसीजन आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा जो आपको घर पे नहीं सीखने मिलेगा, और आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं इन अ वे जो आपके घर पे नहीं होता। खुशबू की बातें सुन के तो लग रहा है कि हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस कभी ना कभी करना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सपीरियंस कभी ना कभी नहीं बल्कि एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में रहने से ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको डिसिप्लिन आ जाता है। क्योंकि आप घर में होते हैं ना तो आप कहते हैं अभी मैं खाना खा लूंगी, अभी बाद में खा लूंगी, अम्मी पीछे पीछे होती हैं, घर वाले पैम्पर कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा जो है हॉस्टल में ना रहें, लेकिन एक दफ़ा कहीं जॉब कर लें, ज़रूर आप डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। घर की कदर आ जाएगी, घर की कदर आ जाएगी। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे हॉस्टल चेयरमैन पर्सन सफिया से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हॉस्टल प्रोवोस्ट डॉक्टर सोबिया शहजाद। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह शुक्र बहुत बहुत ठीक हूँ। और मैं हॉस्टल शुक्र अदा लाइफ- करना चाहूँगी आज न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस बिल्कुल। पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत मेरी खुशी की बात है। हॉस्टल लाइफ में बच्चियों का डिसिप्लिन कैसे कायम करती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इसको संभालना कितनी मुश्किलात आती हैं? नहीं, सचेस मुझे तो भी इतनी मुश्किलात फेस करनी नहीं पड़ रही, क्योंकि डिसिप्लिन इस सेंस में कि जब इनका एडमिशन होता है कराची यूनिवर्सिटी में तो हम एक प्रोस्पेक्टस उनको दे देते हैं जिसमें तमाम रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं और क्या डिसिप्लिन किस तरह से रखना है, क्या करना है, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नोटिस आपके खिलाफ लिया जाएगा। तो उस लिहाज से होता है कि जब डिसिप्लिन रखा जाता है और ख़ुद भी वो कोशिश करती हैं कि डिसिप्लिन करें, और हमारे पास एक पूरा स्टाफ है जो अंदर होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो बहुत जल्दी से उसको कवर कर लेती हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स का आना जाना, वहाँ पे रहना, अभी तक तो मुझे कोई ऐसी डिफ़िकल्टी अल्लाह का शुक्र पेश नहीं आई, क्योंकि डिसिप्लिन है स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन है, वो समझती हैं कि वो पढ़ने आई हैं तो उन्हें किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जो उनके लिए भी बेहतर है और यूनिवर्सिटी के लिए भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के मुतालिक जो कि हॉस्टल में रहते हैं, अपने घरों को छोड़ के जो है दूसरे शहरों में आते हैं, तो डेफिनेटली एक हॉस्टल ही उनके पास एक ऐसी जगह होती है, और एटलीस्ट उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है आप डेफिनेटली, तो किस तरह की कंप्लेन आती है या किस तरह आप उनको फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनको कहीं, जाहिर सी बात है घर की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन किस तरीके से केटर करते हैं, किस तरीके से आप उनको एनवायरनमेंट आप सही कह रही हैं। देखिए, पहली दर्जगाह तो फैमिली है और बेसिक यूनिट फैमिली है, वहाँ जो सोशलाइजेशन मिलती है और जो तालीम मिलती है कोई निमुल बदल नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ बेहतर तालीम की जो है हुसूल की सहूलियात मौजूद नहीं है, तो वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं दूसरे शहरों में पढ़ाई के लिए। तो हमारे कराची हॉस्टल में माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, और ख़ास तौर पर गिलगित से बहुत सारी बच्चियाँ हैं। जी हाँ, गिलगित में बहुत सारी बच्चियाँ वो कोशिश करती हैं कराची यूनिवर्सिटी में ही उनका एडमिशन हो जाए। तो जब वो आती हैं तो हम उनको बड़ा प्रोवोक करते हैं, उनको एडमिशन भी देते हैं, तमाम रूल्स रेगुलेशन बताते हैं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि वो फैमिली से अपनी बात भी कर सकती हैं, और विजिटिंग आवर्स में हर सैटरडे संडे को जो है वो विजिटर्स आ सकते हैं, अगर कोई चीज़ देना चाहें वो उनको दे सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, और अगर वो एप्लीकेशन देती हैं कुछ दिन के लिए जाना चाह रही हैं, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो हम उन्हें जाने भी देते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जैसे बलूचिस्तान से, गिलगित से स्टूडेंट्स आते हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, इंटरनेशनली भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, और फिर हर कोई क्योंकि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, फिर इन सबको कैसे एक ही डिसिप्लिन पे लाना, मैनेज करना, कोई मसाइल से फॉरनर्स हमारे पास जो कुछ ईरान की हैं, कुछ सोमालिया की हैं, ऐसे वो आराम से, क्योंकि वो उनको पता है कि वो स्टडी यहाँ पे कर रही हैं, उनको शेयर करना है, तो बहुत चीज़ों को शेयर कर लेती हैं और एडजस्ट कर लेती हैं। कोई ऐसी कंप्लेंट फिलहाल तो नहीं आई है। ज़्यादातर ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई क्लैश हो गया, कोई ऐसी बात हो गई कि मुझ तक पहुंची है, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि पहले उनको नोटिस दूँ, उनको एक्शन, मतलब उनको नोटिस देती हूँ, लिखा जाता है कि भाई आप जो है इतने दिन में जो है इसको क्लियरफाई करें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानती हैं, असर नहीं होता है, तो फिर हम फॉरनर्स वालों के लिए तो एम्बेसी को अप्रोच करते हैं, और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली को, गार्जियंस को या पेरेंट्स को, जो भी उनको अप्रोच करते हैं कि इस तरह का मामला है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। मतलब तमाम तरह के जो भी क्लैशेस वगैरह होते हैं तो वो आप मैं समझती हूँ कि नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, लोग रहेंगे तो उनके दरमियान छोटी मोटी बात तो होती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। देखिए, थोड़ी चीजें होती हैं, कभी कभी प्रोटेस्ट पे भी आ जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि भाई खाना सही नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम, प्रोटेस्ट पे आ जाती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ उसका हथियार यही है कि आप उनसे नरमी से बात करें, उनको एड्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम्स को फौरन जो है वो कोशिश करते हैं कि हम फौरन सॉल्व करें। सही। अच्छा, एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं उन एग्जाम्स के दौरान उनको अपना घर भी बहुत ज्यादा याद आता है, और दूसरी सहूलियात भी होनी चाहिए होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो आपकी अम्मी आ रही हैं, आपके लिए दूध लेके आ रही हैं, बादाम लेके आ रही हैं, आपको खिला रहे हैं कि जी सारी रात जाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो हॉस्टल की जो पूरी इंतजामिया है, आप लोग एग्जाम्स के दौरान क्या खास इंतजाम करते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, एग्जाम के दिन में देखिए कोई ऐसा इक़दाम तो नहीं होता है, कोई खास है कि वो अपने कमरे में पढ़ती हैं, क्योंकि एक्चुअली जो शेयर करती हैं, एक रूम में हमारे 2 शेयर करती हैं, ठीक है, 2 शेयर करती हैं, उसके अलावा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, वो ग्रुप स्टडी भी कर रही हैं, फिर लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में बैठ के रात को पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो अपने दिन में भी स्टडी कर सकती हैं। कराची यूनिवर्सिटी में भी जो है मेन लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट है, तो कोई ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अल्लाह का शुक्र है वो रहती है, जिस टाइम पे जो चीज चाहिए होती है तो आप प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर लाइट चली जाती है तो हमने जनरेटर का भी इंतजाम किया हुआ है। हाँ, वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स रहता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बहुत ज्यादा रहता है, तो इतना मीडिया फास्ट हो गया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है फौरन वो हमारी रेजिडेंट वार्डन जो है उनको कह देती हैं, और वो मुझे कॉल कर देती हैं, जो जहाँ भी होता है मुझे कॉल कर देता है, मुझे इंटर जाता है, तो फिर मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और वो एग्जाम्स में बहुत एट ईज होती हैं, आराम से कर लेती हैं, आराम से। खाने
کھانے کا آپ نے ذکر کیا, گھر سے دور ہو تو انسان کو گھر کا کھانا جو ہے سب سے بہترین لگتا ہے اور یاد آتا ہے. مینیو کس قسم کا ہوتا ہے ہاسٹل میں, اور دوسرا کوئی ایونٹس وغیرہ آپ لوگ پریپیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹڈیز کے علاوہ بھی ان کو بھی؟ مینیو جو ہے ان کا تھا تو انہیں کی پسند سے ہوتا ہے, ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ رائس پسند کریں گی, بریڈ پسند کریں گی, چکن بھی ہوتی ہے, چکن بھی ہوتا ہے, اور وہ سب اپنی مرضی سے بنواتی ہیں اور ایک ہی ٹائم لیتی ہیں. انہوں نے خود منع کیا ہوا ہے کہ ہم لنچ نہیں لیں گے کیونکہ ہم لنچ میں ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. اچھا جی, لنچ میں 2 بجے کلاس ہے, 1:30 بجے کلاس ہے, 3 بجے ہے, تو وہ بہت سارے کینٹینز ہیں, باقاعدہ ایسی کینٹینز بنی ہیں جن میں کھانا بھی اویلیبل ہے, ریفریشمنٹس بھی ہیں, تو آرام سے وہ دوپہر میں کر لیتی ہیں اپنا مینیج. تو خود بھی کچھ وہاں پہ ایسے جو ہے کچن میں جو ہے اسٹوو وغیرہ رکھے ہوئے, تو انہیں نوڈلس بنا لیے, انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی جو ہے پاستا بنا دیا, وہ خود بھی کوکنگ کر لیتی ہے. کوئی اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسے پرابلمس نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جس میں کہوں گی وہاں پہ پرابلم. میں نے پہلی آپ کی جیسی ہیڈ دیکھی جو بڑی ریلیکس ہے, کول کام اور بڑا چل, کیونکہ 280 جہاں پر اسٹوڈنٹس ہوں ان کو سنبھالنا اور ان کے بارے میں اتنا کاملی بات کرنا, دس از گریٹ تھنگ. اچھا یہ بتائیں ایز پروووسٹ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ سوشل بیہیویئر چیلنج ہے نا, ایک تو آپ سوشل بیہیویئر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک سوشلی آپ نے جو ہے وہ ایکویلائز کرنا ہے تمام لوگوں کو, پھر ڈسپلن بھی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس کو کس طریقے سے پھر ہاسپٹل لے کے جائیں گے, اس کے گھر والوں کو انفارم کرنا, یا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, نزلہ کھانسی بخار, ڈاکٹر کا, یہ تو سارا کچھ پھر اس زمرے میں بھی آپ کو کوئی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ جو کلینک ہے یونیورسٹی میں ان کے SMO کا نمبر میرے پاس ہوتا ہے, میں فوراً کال کر دیتی ہوں, جیسے وہ ریزیڈنٹ وارڈن مجھے کرتی ہیں, میں کال کر دیتی ہوں, فوراً ایمبولینس آ جاتی ہے, ایمبولینس ان کو لے جاتی ہے, اور دین اینڈ دیر اگر کسی کا بی پی شوگر گیا ہے یا خاص طور پہ ناشتہ نہیں کرتی ہیں تو شوگر لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو فوراً ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, دین اینڈ دیر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اور جو ان کے خاص ریلیٹیوز اگر وہیں کراچی میں رہتے ہیں تو انہیں کال کر کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اللہ شکر ہوتا ہے میڈیکل کا. اور دوسرے بہت ساری چیزوں کی, جیسے دیکھیں یونیورسٹی بہت بڑی ہے, ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز بھی ہیں, پھر ہماری انتظامیہ بہت اچھی ہے, وائس چانسلر بھی سلسلے میں بہت سارے کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کسی بچے کو اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے ہو, ایموشنز بھی تو ہوتے ہیں ان لوگوں کے, ایموشنل میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, بس میں نے یہ دیکھا کہ جیسے تھوڑا سا کانفلکٹس ان میں ہوتا ہے, ہیومن بیہیویئر ہے, جہاں 2 گرلس ساتھ رہتی ہیں 3, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے, پڑھنے نہیں دیتی ہیں, یا یہ مسئلے ہوتے ہیں, یا ان کی دوست آ جاتی ہیں, وہ مجھے تنگ کر رہی ہیں, انہوں نے دکانیں چلا لی ہے, وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہی ہیں, یا ان کی فرینڈ زیادہ آ رہی ہیں, جی پھر میں اس میں روم جو ہے وہ چینج کر دیتی ہوں, روم چینج کر دیتی ہوں, بیسٹ سولوشن یہی ہے. صحیح. اور اگر انہیں ان خاتون سے بھی مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بس آپ ہاسٹل چینج کر نہیں, ہاسٹل تو چینج کیا, لڑکیاں بھی سمجھدار ہیں, سمجھ جاتی ہیں, بس میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں بہت نرمی سے پولائٹلی اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتی ہوں, تو وہ سمجھ لیتی ہیں. ہم آپ سامنے آئی ہیں تو بالکل ایک کانسیپٹ چینج ہو گیا نا ہاسٹل کے حساب سے, بڑی روزگار قسم کی شخصیت آتی ہے, اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ بس گزریں گی تو سناٹا چھا جائے گا, لیکن آپ تو بہت فرینڈلی لگ رہی ہیں. ہاں, میں بہت اچھی فرینڈلی بات کر لیتی ہوں, کہ مسئلوں کو سنتی ہوں, ان کی کو سنتی ہوں, ان کی اپلیکیشنس کو دیکھتی ہوں, ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی پرابلم کو سن لیں. جی, تو ہمیں سوشیولوجی میں یہی بتاتا ہے, سوشیولوجی میں یہی بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایڈجسٹ کریں انوائرمنٹ کے ساتھ, اور کس طرح سے پرابلمس کو جو ہے اوور کم کریں. صحیح. اچھا, اب آج آپ ان تمام لوگوں کو کیا میسج دیں گی جو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور جن کے پیرنٹس بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں جگہ بڑا اچھا کالج ہے, یونیورسٹی ہے, ہم جانا چاہتے ہیں, ہم وہاں پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن رہائش کا ایشو ہے, پتہ نہیں ہاسٹلس کیسے ہوتے ہیں, ان تمام پیرنٹس کو اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آپ کیا میسج دیں گے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دیکھیں بچے دور ہیں تو ظاہر بات ہے ماں باپ سے دور ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, پھر وہ سہولیات جتنی بھی ہوں وہ بہت کم ہوتی ہوں, کیونکہ اپنا سیپریٹ بیڈ روم نہیں ہوتا, کھانے پینا اپنی پسند کا چلے نہیں ہوتا اتنا, پھر کوئی اور پرابلمس بھی ہیں, جیسے رات کے وقت نیٹنگ, میڈم نیٹنگ لگوا دیں, کوئی ہے یا کوئی اور چیز کروا دیں ہمارے ساتھ, یہ وہ تو ہوتا ہے. بس میں یہ پیغام دوں گی, دیکھیں گا وہ پڑھ رہی ہیں, آئی ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو بہت بڑا کاز ہے, ان کو ڈگری حاصل کرنی ہے, ان کو اپنا فیوچر پلان کرنا ہے, تو اس سلسلے میں وہ 2 سال رہیں, 4 سال رہیں, 6 سال رہیں. بہت سے بچوں کے ایئر بیگ بھی ہو جاتا ہے, وہ رہتی ہیں وہاں پہ PhD کے لیے کم سے کم 6-7 سال ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ ایڈجسٹ کر کے رہیں, محبت سے رہیں, شیئر کر کے رہیں, اور زیادہ پرابلمس کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں. اسٹڈیز میں اگر کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آفٹر یونیورسٹی؟ اگر وہ آپ سے کوئی ہیلپ لینا چاہے تو اس کے لیے کیا پلانز ہوتے ہیں؟ اسٹڈیز میں دیکھیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا, اب سائنس کے بھی ہیں, فارمیسی ہے, اسلامک سے, سب کا اپنا اسپیکٹس ہے, ڈفرینٹ ہے. کوئی اب سوشیولوجی میں کوئی مجھ سے ہیلپ مانگنے آئے گا تو میں زیادہ سوشیولوجی کے حوالے سے گائڈ کروں گی. تو زیادہ یہ ہے کہ ایک وہ لائبریری کو یوز کرتی ہیں, پھر ڈیجیٹل لائبریریز بھی موجود ہیں, نیٹ موجود ہے,
बुक्स अवेलेबल हैं तो वो उससे अपनी स्टडी करती हैं, और प्रॉब्लम होती है अपने कंसर्न टीचर से जाकर बात कर लेती हैं। हाँ, वो तो प्रॉब्लम्स के लिए तो डेफिनेटली वो अपने जो करीबी नहीं, बाकी जो उनके हमसे मांगते हैं कि consultant जैसे मैडम अभी जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं अप्रैल के एंड में जो है वो फाइनल एग्जाम्स हैं, उसमें वो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट करेंगी कि हमें ये चाहिए स्टडी के दौरान, ये है मैडम ये देख लें, तो इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड दैम। सही। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से इन लोगों की जो हॉस्टल में रहते हैं उस हवाले से कुछ बताइएगा कि सिक्योरिटी के किस तरीके से इंतजाम होते हैं, चौकीदार होता है नीचे, प्रॉपर गार्ड होता है, या क्या चीज़? जी जी, चौकीदार आपको वैसे ही पता है कि यूनिवर्सिटी में रेंजर्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी है, और इनका तो ये है कि सुबह से 2 शिफ्ट होती हैं, एक सुबह 7 बजे आते हैं तो शाम के 7 बजे आते हैं, और शाम के 7 बजे आते हैं तो वो रात के 8 बजे जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के अलावा बाहर तो वॉचमैन होता है, अंदर जैसे एंटर हो तो एक मैंने जो है वो लेडी रिसर्चर रखी हुई है। अच्छा, मॉर्निंग में लेडी सर्चर होती है, शाम होती है। हाँ, जो भी लड़की एंटर होती है, जो भी चाहे उसके पेरेंट्स एंटर हो रहे हैं, कोई भी एंटर हो रहा है, मिलने दोस्त भी आ रही हैं, कभी भी फ्रेंड्स को भी ले आती हैं साथ में, तो वो लेडी सर्चर उनको चेक करती है, फिर उनको अंदर जाने देती है। फिर एक वो रजिस्टर रखा हुआ है कि जो जाएगा वो आएगा, वो अपनी एंट्री करेगा आने जाने से। हम बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो, और अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो पूरा कवर्ड एरिया है उनका, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है ना, एक अच्छा हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी और हॉस्टल लाइफ के बारे में जो है आगाह कर रही थी। उन तमाम लोगों ने भी आप सुन लिया होगा जो बड़े डरते हैं कि जी हम नहीं भेज रहे हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी तरह जिद कर रहे होते हैं प्लीज हमें हॉस्टल में जाके पढ़ने दे। खैर, हॉस्टल की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, अगर एक अच्छा हॉस्टल हो, उसकी इंतजामिया बहुत अच्छी हो, उसकी प्रोवोस्ट बहुत अच्छी हो, तो हॉस्टल में रह सकते हैं, कोई हर्ष नहीं। सबा, आपको बहुत शौक हो रहा है, लेकिन जब आप जाएंगी ना तो आप बिल्कुल अपने घर को इतना मिस करेंगी, डेली अम्मी को कॉल करेंगी, अभी सुनो कि मैं मेकअप में अम्मी को याद करेंगी। खैर जी, हॉस्टल लाइफ की बात हो रही है तो हॉस्टल में स्टूडेंट को किस तरह डील करना, इनका एडमिशन करना और इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हॉस्टल में स्टूडेंट्स को किस तरह मैनेज किया जाता है, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने हॉस्टल चेयरपर्सन से इस हवाले से बात की, आइए देखते हैं। मैं सफ़िया हसन हूँ, और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने इसका निज़ाम संभाला है। ज़्यादातर हमने यहाँ पर वर्किंग वुमेन को आउटसाइड कराची रखा है, क्योंकि जो लड़कियाँ ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, यंग होती हैं, तो उनको ट्रांसफ़र होने में यहाँ पर रेजिडेंस में ही डिफ़िकल्टी होती है, तो वो ढूंढती फिरती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस हॉस्टल ने इतनी रेपुटेशन बिल्डअप कर ली है, और हमारी जो सुपरिटेंडेंट चला रही हैं वो इतने डिसिप्लिनरियन है। जब कोई हमारे पास हॉस्टल के रूम्स के लिए आते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं, और हमारी सुपरिटेंडेंट को पता होता है कि वैकेंसीज हैं या नहीं है। उनको सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो हमारी सुपरिटेंडेंट करती हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद हम अपनी प्रेसिडेंट से ज़रूर उनको मिलवाते हैं, एंड वी प्रेफर कि ये करियर वुमेन हों, और हमारे यहाँ इस हॉस्टल में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड से प्रोफेशन से ताल्लुक़ है उनका, और ये देखने के बाद ये अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, तो फिर हम अपनी प्रेसिडेंट को मिलवाते हैं। इफ़ शी ऑल्सो अग्रीज ही टेक्स अ स्मॉल इंटरव्यू, एंड इफ़ शी अग्रीज देन वी प्रोसेस एप्लीकेशन। बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं, बट दे आर ऑल वेरी बिजी, एंड दे यूजुअली कम लेट इन द इवनिंग, एंड एज सून एज दे कम दे यहाँ पर कॉमन किचन है जिसमें अपना खाना वाना गर्म करके वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने रूम्स में जाकर और ये वाले थोड़ा सा खाने पीने का बंदोबस्त करें, बिकॉज दे आर टायर्ड आफ्टर द जॉब्स। इसके टाइमिंग्स हैं, और इसमें 10 बजे तक उनको वापस आना होता है, और इन केस उनको थोड़ा सा किसी तकरीब में या सेरेमनी में जाना हो तो दे हैव टू इन्फॉर्म द सुपरिटेंडेंट, जो कि नोट कर लेती हैं कि 11 बजे इनका लास्ट वो है आने का। हमारे ऑब्जेक्टिव ये था कि उन लोगों को सहूलत दें जिनके घर यहाँ पर नहीं है, और ख़वातीन ख़ास तौर पर वो ये देखती हैं कि कहाँ पर रहा जा सकता है, क्योंकि
लड़कों की तरह से नहीं कि किसी भी दो चार दोस्तों के साथ मिलकर कोई भी ठिकाना चूज कर लेते हैं। उनको देखना होता है कि किसके साथ रह रहे हैं, एंड दे प्रेफर टू लिव अलोन। यहाँ पर फुकदान है अच्छे हॉस्टल्स का, जिसकी इमेज भी अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, तो इसीलिए हमने सोचा है कि इस फ्लोर पर, एक फ्लोर पर बना हुआ है, तो सेकंड फ्लोर हम बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें हम इसका इन प्रोसेस है कहना चाहिए। एज सून एज वी गेट द अप्रूवल्स वी विल डबल द कैपेसिटी ऑफ दिस हॉस्टल। इतना ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव ये पूरा हो रहा है इसको करने का। जी सबा, आपने बात सुनी चेयरपर्सन सफिया की कि कितनी टाइमिंग होती है इन होने की, आउट होने की, तो आप क्या ये सब कर सकेंगे हॉस्टल जाके? हॉस्टल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपने ऑफिस में अपनी टाइमिंग्स पूरी करती हूँ। ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। घर में देखिए कितना रिलैक्स होते हैं, कपड़े आपको वॉश मिलते हैं, खाना ऑन टाइम मिलता है। वहाँ पे मैं खुशबू की भी जैसे स्टूडेंट की बात सुन रही थी कि सब कुछ खुद आपकी जिम्मेदारी सेल्फ मेड हो जाती है ना आप, कि ये भी करना है, ये भी करना है, और टाइम मैनेज करना आ जाता है आपको। तो ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। वही जो बात मैंने पहले की ना कि हॉस्टल में रह के एक दफा कोई देखे तो फिर उसको डिसिप्लिन एटलीस्ट आ जाता है, उसको पता होता है कि इसी टाइम खाना मिलना है, अगर नहीं खाना है तो खाएं, वरना नहीं खाना तो फिर नहीं खाएं। बिल्कुल, और डिसिप्लिन और टाइम की बात करें तो यहाँ शो में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे हॉस्टल की देखभाल करने वाली वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त चटपट खाना बनाने और मजेदार खाने के लिए देखते हैं रैपिड रेसिपी। जी मावरा ने बहुत ही जबरदस्त सी डिश तैयार की है। सबा, क्या आपको भी खाना बनाना आ गया है? यार मुझे खाना बनाना तो नहीं आया, और ये पूछना जरूरी था। अब मैं घर जाऊंगी तो अम्मी कहेंगी कि देखा इसलिए जरूरी था क्योंकि हम हमेशा देखते हैं इतना अच्छा खाना बना रही है, कुछ सीखना भी चाहिए ना। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मावरा के पास जाके शो के बाद कुछ सीखना सीखे और अपनी अम्मी को अपने हाथ से बना के खिलाइए। चाय तो मैं बना के देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सबा, अपने हाथ की चाय हमें भी किसी दिन पिला दीजिए।
लीजिए। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि शाकिर भाई जो चाय हमें ला के देते हैं ना, उसमें मैं चमचा चला के आपको दे दूंगी, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि मैंने वो चाय बना दी है। खैर जी, हॉस्टल लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो हॉस्टल लाइफ कुछ लोगों के लिए तो इंतहाई दिक्कत वाली जिंदगी साबित होती है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदगी आज़ाद और टेंशन फ्री भी होती है। लेकिन इन दिनों मुख्तलिफ किस्म के अफराद यहाँ पे देखभाल करने के लिए तो मौजूद होते हैं, लेकिन नज़्म ज़ब्त का पाबंद रखने के लिए भी हॉस्टल में जो सुपरिटेंडेंट मौजूद होते हैं। आइए इनमें से एक ही सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं, सफिया उनका नाम है, और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। कोई भी लड़की का सिलेक्शन होता है, सबसे पहले उसको मैं लेके जाती हूँ, सबसे पहले चेयरपर्सन के सामने लाती हूँ, फिर मैं प्रेसिडेंट के पास जाती हूँ। फाइनल सिलेक्शन उनका, शी इज द एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम अथॉरिटी। मैं नहीं कहती कि मैं चलाती हूँ, हॉस्टल दरअसल मेरी बच्चियाँ चलाती हैं। उनका डिसिप्लिन, उनकी बातें, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर एक्सेम्पलरी है, उनकी मिसाल मैं दे नहीं सकती। यूँ समझे कि एक तरह का एक गुलदस्ता है फूलों का, जिसकी आबियारी हम करते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको संवारते हैं, उनको सजाते, ताकि वो साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ यहाँ से सीख के जाएं, कुछ अपनी जिंदगी में उसको लाएं। ये मेरा मकसद होता है, और मेरे बड़े बच्चों की मैं तारीफ कितनी भी करूं कम है। मैं जाती हूँ, उनको बताती हूँ कि बेड इस तरह डाल के नहीं जाओ, बेड किस तरह बनाना है, तुम इस सब चीजें को खुली मत रखो, अपने बर्तन होते हैं उनको ढांको। बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम इतना हेवी मेकअप करके क्यों जाते हो, लाइट मेकअप करके जाओ, ऑफिस में वो ज्यादा अच्छा लगता है। सेंट भी लगाओ तो इतना लगाओ कि तुम्हें उसकी खुशबू तुम्हें सिर्फ आए, दूसरों को नुकसान पहुंचाए नहीं, दूसरों को एलर्जी ना हो जाए, दूसरे उससे परेशान ना हो। ये चीजें मैं बताती हूँ उनको। मैं कहती आओ तुम्हें साड़ी पहनना भी सिखाऊंगी। प्रॉब्लम्स होता है, उसको भी बच्चियां मेरे बड़े सब्र से रहते। कभी लाइट नहीं होती, कभी इलेक्ट्रिशियन आने को देर होता है, कभी प्लम्बरिंग का मसला होता है, लेकिन बड़े सब्र से काम लेती है मेरी बच्चियां। कभी आके पलट के नहीं पूछी कि मैडम आज हमारे पास पानी नहीं और इतनी देर आपने क्यों लगा दी। मैं नहीं समझती कि मैं अकेली हूँ। फिर मेरी चेयरपर्सन होती, कोई बात होती उनसे कह दिया, या प्रेसिडेंट से चेयरपर्सन जाके बता देती हैं। तो मैं बहुत मेंबर्स इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी गैलेक्सी है ये तरह की। बड़े मजे में रहते हैं, अपने बर्थडेज मनाती हैं, बर्थडेज मनाते हैं तो पार्टी के तौर पे जाते हैं, मुझसे परमिशन लेते हैं, कहीं रेस्टोरेंट भी जाते हैं, खाना खा के आते हैं। बाज़ वक़्त हमारे पास मदर उनके आते हैं, ऐसे गेस्ट स्टे करती हैं। अलग तो होती है, मैं खुद भी अपने आप को लिमिटेड रखना चाहती हूँ। बच्चियाँ भी अपने अंदर एक हद तक काम कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। मैं खुद भी अपने अंदर एक हद में रहती हूँ, इसलिए कि मैं जवाब दे हूँ पहले चेयरपर्सन को, फिर मैं जवाब दे हूँ प्रेसिडेंट को। और मेरी बच्चियाँ तो इतनी प्यारी, इतनी हाईली एजुकेटेड है, इतने अच्छे घरानों की हैं कि मैं कितनी भी तारीफ करूँ कम है। वो मुझे इतनी इज्जत देती, मेरे आप सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करती, और ये मैं सही कह रही। वक्त पे लाके पैसे दे देती हैं, वक्त पे आ जाती हैं, जल्दी जाना है पूछ लेती हैं, परमिशन लेती हैं, इस तरह से करती हैं। इनकी शख्सियत कितनी खूबसूरत थी, और मुझे तो देख के लग रहा था कि बस मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। इतनी पोलाइट बातें करना, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करना। सबा, आपको कैसी लगी इनकी बात? मुझे बहुत ज़बरदस्त ये खातून लगी, सुपरिटेंडेंट हैं ये, और किस तरीके से ये बात कर रही थी। देखिए, जब हम पूछते हैं ना हमारे बड़ों से कि आप क्यों जॉब करते हैं, इस उम्र में भी नहीं करें, तो यही वजह होती है कि उनको आगे से भी उनके जो जूनियर्स हैं वो इतना प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो कितने प्यार से वो कह रही थी कि जो हॉस्टल की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं बड़े प्यार से उनको रखती हैं, टाइम से सारी चीज़ें उनको दे देती हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं। खैर, आज की तारीख की तरफ पढ़ते हैं, और आज की तारीख क्या है अस्मा, ये आप बताएंगी। आज के दिन यानी 28 मार्च 1891 को इंग्लैंड के तनसाज ई लॉरेंस लेवी दुनिया के पहले हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन बने थे। अरे वाह भाई। पहली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 28 मार्च 1891 को लंदन में मुनक्किद की गई, जिसमें 6 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले आलमी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले 3 दिन तक जारी रहे।
1891 से 1894 के दौरान इंग्लैंड के तनसाज ई लॉरेंस लेवी ने 14 आलमी रिकॉर्ड कायम किए और 28 मार्च 1891 को ई लॉरेंस लेवी दुनिया के पहले हेवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन बन गए। क्या है मुझे चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारों से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के दो चमकते सितारे फरहान खान और हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और कैसा लग रहा है गुड मॉर्निंग आज में आके? काफी अच्छा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगिंग कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने? बचपन से ही शौक था कि पाकिस्तान के लिए कुछ नगमे गाएं, कुछ पेट्रियोटिक सिंगर बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब सीख रहे हैं प्रॉपर, कहीं से सीखा या नहीं? सीखा तो नहीं है, बस खुद ही मोहब्बत वतन की जो है वो सिखा देती है गाना गाना भी। तो ज्यादा आप लोग मतलब फोकस मिनी नगमों पे ही रखते हैं या दूसरे सॉन्ग्स पे? ज्यादा फोकस जो है होता है हमारा वो पेट्रियोटिक सॉन्ग पर होता है। अच्छा, तो चलिए अभी कौन सा सॉन्ग आप हमें सुना रहे हैं? अभी हम सबसे पहले तो हम सोनी धरती से स्टार्ट करेंगे। अरे वाह, जबरदस्त। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने जो है वो सॉन्ग गाया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिल को छू लेने वाला आपने गाना गाया। और मुल्क के लिए जितने भी पाकिस्तान के लिए सॉन्ग होते हैं सब बड़े जबरदस्त होते हैं। अच्छा हसन, आप जो है एसएसजी कमांडो में अब ज्वाइनिंग देने भी जा रहे हैं, तो क्या ड्रीम्स हैं और क्या ख्वाब हैं, क्या करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मतलब मेरी ये सोच है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने से पहले, जब मैं छोटा था, कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वो एक खून में ये थी एक चीज़ कि वो फैमिली में एटमॉस्फेयर था कि वाले साहब भी जो हैं वो भी आर्मी में थे, भाई भी। तो उस लिहाज से ये एक तरबियत भी इस तरीके से हुई कि हुब्बुल वतनी सबसे पहले इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है इंसान को, मतलब जिस कंट्री में वो रह रहा है, किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, लेकिन सबसे पहले तो यही है कि अपने वतन से मोहब्बत जो है वो करनी चाहिए। फरहान, आप सिंगिंग के अलावा क्या क्या करते हैं? स्टडीज में पढ़ता हूँ और स्काउटिंग में हूँ। अच्छा, स्काउटिंग में यूथ पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हैं फरहान, स्काउटिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये बताएं कि सिंगिंग का शौक आपको कब से हुआ? सिंगिंग का शौक मुझे असल में स्काउटिंग से हुआ। अच्छा, स्काउटिंग में जब बच्चे सिंगिंग का शौक कैसे? हमारे जो ड्रम्स वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं 23 मार्च के और 25 दिसंबर वीपी डे होता है हमारा, वीपी डे जो बैटल पावर का दिन होता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ से पिक किया। तो आपने सोचा कि यू कैन आल्सो सिंग, और मुझसे छोटे छोटे बच्चे सिंगिंग करते थे तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं गा सकता। तो फिर मैंने मेरा जो पहला जो सॉन्ग था वहाँ पे चांद मेरी ज़मीं था, तो उसमें मैंने पोजीशन नहीं ली थी,
اس کے بعد سے پھر میں نے خیرپور، ہماری جمہوری ہوتی ہے، جمہوریاں ہوتی ہیں امریکہ وغیرہ میں بھی اور چاند میری زمین آپ نے کہا نا، آپ 2 لائنز اس کی گنگنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہاں. چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن. فرحان سب وہ والے نغمے ہیں جو اسکول ٹیبلوز میں ہم پرفارم کرتے تھے اور وہی یادیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو آپ اس کو پروفیشن بنائیں گے سنگنگ کو آگے چل کر، یہ پلان ہے؟ انشاءاللہ پیٹریوٹک سنگر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ بن کے. زبردست. اچھا، آپ دونوں بہت اچھا آپ کا کمبینیشن ہے، بڑا اچھا آپ گٹار پلے کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ گا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ دونوں پہلے سے ہی دوست تھے، دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار آپ سنگنگ کریں تو میں گٹار پلے کروں گا، یہ مطلب کس طریقے سے آپ دونوں کا گروپ بن گیا؟ یہ اگر ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یہ کل رات کو ڈیسائیڈ ہوا ہے. ہم کالج میں، میں ان سے ایک سال سینئر ہوں اور میرا لاسٹ ایئر تھا یہ، تو اب کل آفٹر ایگزام یہ ملے. اس کے باوجود اتنی اچھی اور اتنی زبردست کیمسٹری ہے، مطلب لگ نہیں رہا، لگ رہا ہے کہ سالوں سال سے آپ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم نے سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ حب الوطنی رکھی ہے. حب الوطنی رکھی ہے، ڈیفینیٹلی سب کو یکجا کر دیتی ہے کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ. تو ہمیں کچھ اور سنائیے ملی نغمہ. بالکل ضرور. پاک آرمی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اسپیشلی یہ نغمہ آج کل جو ہمارے پاک آرمی جو مردم شماری میں سب سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ایٹماسفیئر ہو جو دھوپ گرمی سب، اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے. اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوان، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک وہ سے دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوان، اے وطن کے سجیلے جوان. واو واو، بہت زبردست آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا سانگ اور بہت زبردست آپ دونوں گا رہے ہیں. آپ دونوں کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. پاک آرمی میں جائیے، خوب نام کمائیے، اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں سنگنگ میں نام کمانا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. اور پاکستان کے چمکتے ہوئے ستارے تو آپ ہیں، اور چمکے اور پاکستان کا نام روشن کریں. تھینک یو. آپ میں بھی کوئی خاص ٹیلنٹ ہے اور آپ بھی اس سیٹ پر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کہانی بتائیے ہماری سوشل میڈیا سائٹس پہ. ایسے ہی ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے، پسند کرتے رہیے. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ آج.